Hello dear students, again I am back with Operation Research Transportation Problems, and yes, don't forget to like and subscribe the channel as this motivates me to make more videos on tough topics logically. Transportation problems. Over here I am going to discuss regarding how to minimize the total cost of transportation while transporting goods from plant to warehouse. So okay, smart decision is always required while deciding on cost of transportation so as to increase our profit. Same thing I had explained you all with the help of an example. Over here I had taken that Mr. Bajaj has 3 plants and 3 warehouses. ठीक है, उसके 3 plants है और 3 warehouses है. I will just speak the meaning of plant. Plant is what? The area over where the goods have been produced, and warehouses means the place over where the goods have been stored. Okay, for future supply to various retail shops. Now Mr. Bajaj has 3 plants, that is A, B and C. उसके warehouses भी 3 है, that is P, Q, R. उसको क्या करना है? Want to transfer the goods to this particular warehouses. So it depends on the demand and as well as the transportation cost that plant A is going to incur to transfer the goods from its place to P, to Q, to R. Okay. Again, सपोज उसको प्लांट बी से गुड्स अगर ट्रांसफर करने हैं पी क्यू आर से, तो वो किसके बेसिस पर डिसाइड करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड टू ऑफ गुड्स इन रिस्पेक्टिव वेयरहाउसेस, दैट इज पी क्यू एंड आर. अगेन अगर उसके प्लान सी से अगर ट्रांसफर करना है गुड्स, तो क्या करेगा? उसका डिसीजन किसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना इनकर हो रहा है डिफरेंट वेयरहाउसेस को गुड्स ट्रांसफर करने के लिए, एंड एज वेल एज रिस्पेक्टिव वेयरहाउसेस के डिमांड कितने हैं गुड्स रखने के. ओके. Some of the basic concepts in your transportation problems. The first one is minimization problem. Minimization problem यानी क्या? वो प्रॉब्लम जिसका कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा कि हमें कॉस्ट कम करना है. Maximization problem, it means what? That my main objective is to maximize my total profit. Okay. The next one is your balanced problem. We are going to deal with this kind of problem, that is balanced problem, or where the total demand is equal to total supply. मतलब जो different warehouses के जो demand थे ना, उसका equal क्या होगा? total supply हो जाएगा. Unbalanced problem, that is total demand is not equal to total supply. प्रोहिबिटेड प्रॉब्लम यानी कि रेस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम. नाम से तुम्हें क्या पता चल रहा है? दैट समवेयर द ट्रांसपोर्टेशन इज बीन रेस्ट्रिक्टेड. सेम थिंग इज बीन एक्सप्लेन विद टू यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. हमारे पास प्लांट ए बी सी है, वेयरहाउसेस पी क्यू आर है. हम प्लांट ए से वेयरहाउस पी को ट्रांसफर कर सकते हैं गुड्स, वेयरहाउस क्यू को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ सम रूट प्रॉब्लम वी कांट ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम ए टू आर. Okay, these are what? These are prohibited problems. Just keep this particular key points in your mind. Minimization problem, जहाँ पर भी क्या होगा? Minimize total cost. Maximization problem, वो क्या करेगा? Maximize total profit. Naturally profit हमें बढ़ाना रहता है और cost हमें कम करना रहता है. Okay. Next is balanced problem. It means what? Demand is always equal to supply. That we are going to deal. देन अनबैलेंस प्रॉब्लम, जहां पर कि टोटल डिमांड तुम्हारा टोटल सप्लाई को इक्वल नहीं होगा. प्रोहिबिटेड प्रॉब्लम यानी कि समवेयर सम ऑफ द रूट्स हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड. ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया. ओके. देन नेक्स्ट यू हैव इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस. Feasible solutions, in this we have 3 varieties: northwest corner method, least cost method, Vogel's approximation method. ये तीनों भी मेथड्स मैं डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगी. ओके. द फर्स्ट वीडियो विल बी ऑफ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड एंड देन नेक्स्ट ऑनवर्ड्स आई विल जस्ट गो ऑन विथ अदर वीडियोस. Now we have a basic assumption while solving this particular transportation problems. The basic assumption is what? Demand is equal to supply. मतलब वेयरहाउसेस का जितना डिमांड होगा उतना ही हम प्रोडक्शन सप्लाई भी करेंगे. ओके.
Now we have 3 production units, that is your F1, F2, F3. ठीक है, तीनों प्रोडक्शन यूनिट्स है मेरे, और जहां पर मैं स्टोर कर रही हूँ मेरे गुड्स, वहां का जो डिमांड है इट इज हाउ मच, W1 का 7 है डिमांड, W2 का 11 यूनिट्स, W3 यानी कि वेयरहाउस 3 का 10 यूनिट्स का डिमांड है, वेयरहाउस 4 का 12 यूनिट्स का डिमांड है. ओके, सो नाउ वी हैव 3 फैक्ट्रीज एंड वी हैव 4 warehouses with different demanding units. ठीक है, और ये है कि हम कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं डिफरेंट फैक्ट्रीज में. ओके, सेम थिंग यहाँ पर दिया है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना इनकर हो रहा है. इट मीन्स warehouse 1, 2, 3, 4, फैक्ट्री F1, F2 एंड F3. ठीक है, फैक्ट्री 1 से वेयरहाउस 1 तक जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस कितना है, 43. फैक्ट्री 1 से वेयरहाउस 2 को जाने के लिए एक्सपेंसेस हाउ मच, 31. फैक्ट्री 1 से वेयरहाउस 3 को जाने के लिए हाउ मच वी हैव टू इनकर एक्सपेंस, 60. एंड फ्रॉम फैक्ट्री 1 टू warehouse 4 we have to incur an expenditure of 25. Okay, same thing, same over here, the cost is been written, the transportation cost that we are going to incur from factory 2 to W1, W2, W3 and W4. I hope you have understood it. It is very simple to understand it. Same thing with factory 3. From factory 3 to warehouse 1, our transportation cost is how much, 65. Factory 3 to warehouse 2, our transportation cost is 57. Factory 3 to warehouse 3, transportation cost is 37. Factory 3 to warehouse 4, transportation cost is 90. Okay, same thing I had explained with the help of a transportation table, this table that we have to draw while solving the problem. Okay, from, that is your factories, to, that is the destination, to, that is the place over where the goods have been sent. ठीक है, warehouse 1, 2, 3 and 4, factory 1, 2 and 3. At the end of warehouses we have supply, and at the end of factories we have demand. ठीक है, मतलब warehouse 1 का डिमांड कितना है, 7 यूनिट्स का, यहाँ पर हमने देखा था राइट. warehouse 1 का टोटल डिमांड 7 है, warehouse 2 का टोटल डिमांड 11 है, warehouse 2 का टोटल डिमांड 11 है, warehouse 3 का टोटल डिमांड कितना है, 10. Okay, same thing I had written, W3 demand is 10, W4 demand is 12, W4 demand is 12. These all are in the form of units. Okay, the supply and demand both are in the form of units. ठीक है, ये सारे warehouses का डिमांड है, W1 का 7, W2 का 11, W3 का 10, W4 का 12. बट फैक्ट्रीज प्रोड्यूस कितना कर पा रहे हैं, वो सप्लाई कितना कर पाएगा. F1 सप्लाई कर पाएगा 12 यूनिट्स, F2 सप्लाई कर पाएगा 13 यूनिट्स, F3 सप्लाई कर पाएगा 15 यूनिट्स. Since we have limited supply units and we have some demands, okay, we have to fulfill these demands from either of the factories or from each of the factories. Depend कि cost कितना किसके लिए incur हो रहा है. Naturally जिससे cost मुझे कम incur होगा मैं उसको पहले select करूंगी, highest cost वाले को मैं उसको last में select करूंगी क्योंकि उसमें मेरा खर्चा ज़्यादा है. In your feasible method, the first method is northwest corner method. ठीक है, northwest corner method. From the name itself, you can find out कि northwest से कुछ तो related है. Now, before we'll start with the problem, I will just explain you this particular small diagram that we had drawn. Okay, we have north, we have west, middle क्या है तुम्हारा, northwest. Middle is what, northwest. सेम थिंग हमने कैसे ड्रॉ किया है, स्टेयरकेस के फॉर्म में, सीढ़ी के फॉर्म में, जहाँ से कि हम ऊपर से नीचे आएंगे. ओके, हमारा फ्लो कैसा होगा, ऊपर से नीचे होगा फ्लो. कीप इन योर माइंड, खाली इसको खाली ध्यान में रखना है दैट इट इज व्हाट, हमें ऊपर से नीचे आना.
Now we had already seen this problem in the last slide, that is production हमारा इतना था from various factories, that is तुम्हारे 3 factories. Then तुम्हारे warehouses के जो demand थे वो इतने थे, इतने units के थे. तुम्हारे 4 warehouses है उसके demands. Then ये तुम्हारा क्या है, factory का expense है. फैक्ट्री 1 से वेयरहाउस 1, फैक्ट्री 1 से वेयरहाउस 2, फैक्ट्री 1 से वेयरहाउस 3, फैक्ट्री 1 से वेयरहाउस 4. सेम थिंग विथ योर अदर एक्सपेंसेस. ये तुम्हारे खर्चे हैं किसके, ट्रांसपोर्टेशन के, रिस्पेक्टिव वेयरहाउसेस को गुड्स पहुंचाने के लिए फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव फैक्ट्रीज. ठीक है. Same thing I'd explain you with the help of a transportation table, over where we are going to decide that how we are going to distribute goods to different warehouses. ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना है, goods हमें distribute करना है different warehouses by following north west corner method. ठीक है, in other words staircase method. Okay, that is factory 1 से हमारा production कितना आ रहा है, it is 12. वेयरहाउस 1 का डिमांड कितना है, 7. व्हाट डज इट मीन, अगर मेरा प्रोडक्शन अगर ज़्यादा है एज कंपेयर टू माय डिमांड, तो मैं क्या करूँगी, पूरा का पूरा उसका जितना डिमांड है वो मैं वेयरहाउस 1 को दे दूँगी. उसका डिमांड 7 है और वो 7 मैंने पूरा किसको दे दिया, वेयरहाउस 1 को दे दिया. ओके, मैंने वेयरहाउस 1 को दे दिया. आफ्टर गिविंग द रिस्पेक्टिव प्रोडक्शन टू वेयरहाउस 1, आई स्टिल हैव सम बैलेंस इन माय फैक्ट्री 1, राइट. मेरा टोटल प्रोडक्शन कितना है, 12. 12 में से मैंने वेयरहाउस 1 को कितना दिया, 7. बचा कितना फिर और फैक्ट्री 1 के पास, 5. तो वो 5 उसके जस्ट बाजू वाले सेल को दे दूंगी, दैट इज W2 को मैं दे दूंगी. ओके, W2 को मैंने कितना दे दिया, 5 दे दिया. सो इन दिस वे आई हैड ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री 1 टू वेयरहाउस 1 एंड वेयरहाउस 2. ओके, फैक्ट्री 1 के पास अभी कुछ भी गुड्स नहीं. Now come to the next. Okay, warehouse 2 के पास टोटल डिमांड कितना था, 11 यूनिट्स. 11 में से मैंने सप्लाई फैक्ट्री 1 में से कितना कर दिया, 5. 11 में से 5 कर दिया, तो और मुझे कितना सप्लाई करना चाहिए वेयरहाउस 2 को, और 6. बैलेंस कितना बचता है, 6. दैट इज योर 11 माइनस 5. बैलेंस मुझे और कितना देना है वेयरहाउस 2 को, 6 देना है, 6 यूनिट्स. ठीक है, तो वो 6 में किससे दे दूंगी, फैक्ट्री 2 से. फैक्ट्री 2 से क्यों दूंगी, बिकॉज आई हैव एडिक्वेट बैलेंस ओवर देयर. मेरे पास बैलेंस 13 है और फैक्ट्री 2 को मुझे कितना देना है, सॉरी वेयरहाउस 2 को मुझे कितना देना है, 6. ओके, अगेन आई विल कम टू द नेक्स्ट सेल. सी, वी आर फॉलोइंग व्हाट, स्टेयरकेस. हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, राइट. तो 6 मैंने फैक्ट्री 2 से वेयरहाउस 2 को दिया था. अब मैं जो भी बैलेंस बच रहा है फैक्ट्री 2 में से, फैक्ट्री 2 का टोटल सप्लाई कितना है, 13. उसमें से मैंने वेयरहाउस 2 को कितना दिया, 6. तो और उसके पास बैलेंस कितना, और 7 है. तो वो 7 में किसको दे दूंगी, वेयरहाउस 3 को दे दूंगी. वेयरहाउस 3 का डिमांड कितना था, 10. तो वो 10 में से मैंने 7 उसको कहाँ से दे दिया, फैक्ट्री 2 से दे दिया. So in this way I had already given my production from factory 2 to warehouse 2 and warehouse 3. ठीक है. Now उसके बाद में मुझे क्या करना है, मुझे फिर से लेडर उतरना है, यानी कि स्टेयरकेस मुझे उतरना है, नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है. नेक्स्ट स्टेप में कौन है, फैक्ट्री 3 से मुझे लेना है. फैक्ट्री 3 से अब मैं कितना लूंगी, सी टोटल वेयरहाउस 3 का डिमांड कितना था, 10. 10 में से मैंने फैक्ट्री 2 में से उसको कितना दे दिया, ऑलरेडी 7 दे दिया. तो और कितना बचेगा, 3 बचेगा. सो वो 3 मुझे कहाँ से देना है, फैक्ट्री 3 से देना है. ठीक है, दैट 3 आई एम गोइंग टू सप्लाई फ्रॉम फैक्ट्री 3. नाउ कम टू द नेक्स्ट. वेयरहाउस 3 का टोटल डिमांड पूरा काम हो चुका है, राइट. नाउ आई विल कम टू द नेक्स्ट, दैट इज वेयरहाउस 4. वेयरहाउस 4 का टोटल डिमांड कितना है, 12, राइट. अभी टोटल सप्लाई फैक्ट्री 3 का कितना है, 15. 15 में से 3 ऑलरेडी वो फैक्ट्री 3 को दे चुका है, राइट. नाउ बैलेंस कितना बचा था, 12. वो 12 मुझे किसको दे देना है, वेयरहाउस 4 को. ओके, सो इन दिस वे फैक्ट्री 3 के पास 15 था, वो 15 यूनिट्स में से मैंने 3
वेयर हाउस 3 को दे दिया और वेयर हाउस 4 को 12 दे दिया. So I just distributed all the productions on the basis of northwest corner method. ठीक है. If you look at the end over here, the demand and supply both are equal. Just now I told you that we are going to deal with the balanced problem, यानी कि जहाँ पर कि डिमांड और सप्लाई दोनों भी सेम होगा. ओके